आज हम कुछ खास टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गैसेस के बारे में हमने कर लिया था, गैसेस के सारे टॉपिक हो गए थे। हेलो यस सर। बच्चों, गैसेस की मॉर्निंग सर। प्रॉपर्टीज हो गई थी, नहीं हुई थी? तो हाँ सर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, in a in a gases the particles are much farther apart from one another as compared to the solid and liquid. solid और liquid के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। व्हाई? क्योंकि आपको पता है दे हैव a very little or negligible force of attraction or the molecular force, intermolecular force. ठीक है? Spaces between the particles of the gas are very large. The force of attraction between the particles of the gas is negligible. So the particles of the gas are freely to move in any direction, and the position of the particles of gas as well as the spaces between the particles of the gas are not fixed. The particles of the gas have the maximum movement. ओके, मैक्सिमम मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होता। दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स कैन मूव हियर एंड देयर। ओके, ड्यू टू दिस द gases have most disorderly arrangement of the particles because of high kinetic energy and the negligible force of attraction. The particles of gas move high speed in all directions. When the fast moving gas particles hit the wall of the container, they exert a pressure. Thus a gas exert a pressure on the wall of its container. ठीक है? आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि why the particle of gas exert pressure on the wall of the container? Because they have a very kinetic energy. That's why they can move anywhere. And when they collide the surface of wall of the container, they exert a pressure. Okay, thus a gas exert upon the collision of the fast moving gas particles against the wall of the against the wall of the container. When the gas is put into in an empty container, it quickly spreads throughout the container and fills it completely. If a gas is heated, the particles of the gas start moving faster and faster. आप गैस को भरते हो तो क्या होता है, पूरे कंटेनर को भर लेता है। ऐसा सॉलिड और लिक्विड के केस में नहीं होता था, है ना? बट गैस थोड़ी भी मात्रा में, थोड़ी क्वांटिटीज में भी हुई तो पूरे के पूरे सिलेंडर्स को क्या करती है, फिल कर लेती है। I will now explain the property of the gases. The gas does not have a fixed shape because of the position of the particles are not fixed. A gas doesn't have fixed volume because the spaces between the particles are not fixed. Since the particles of the gas are free to move, it takes the shape and volume of the container. A gas is usually particles space between them. A gas very क्यों होती है? बिकॉज बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं, जो कि वो बहुत दूर दूर पे होते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत फार अपार्ट होते हैं। अ गैस फिल इट कंटेनर कंप्लीटली। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ये सारी चीजें। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि गैस हैज नॉट अ फिक्स शेप। कैसे सोल्व करोगे आप? तो आपने देखा होगा बैलून वगैरह जो होता है, तो जिस शेप का जो बैलून होता है उसी शेप में वो बैलून, है ना, राउंड शेप का हो सकता है, लॉन्ग बैलून हो सकता है। तो गैस का कोई अपना शेप है, उसको जिस तरह के कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेता है। गैस हैज नो फिक्स वॉल्यूम। गैस की अपनी वॉल्यूम भी नहीं होती है। इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। उसको जिस कंटेनर में डालो उसी कंटेनर की वॉल्यूम वो गेन कर लेती है। ठीक है? गैस को कंप्रेस्ड किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड को कभी भी कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। आप घर में जो एलपीजी यूज करते हो, है ना, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप एक फ्रिज में एयर को कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेस हो सकता है, बट लिक्विड में और सॉलिड में कंप्रेशन नहीं होता। उनको आप दबाना चाहोगे तो ये नहीं दबेगा। ठीक है? गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। Gases have high compressibility. They can be compressed into very small volume by applying a large pressure. And due to its high compressibility, fairly large mass of gas can be put into the small metal
cylinder by compression. Such gas cylinder can be transported conveniently from one place to another. The cooking gas, liquefied petroleum gas, which we use in our home, is compressed gas. The oxygen gas supplied to the hospital in cylinder is also compressed from compressed natural gas. Okay. Also in compressed from and compressed natural gas filled in cylinder in being increasingly as a fuel to run vehicles like car and buses. तो ये चीज जितनी प्रॉपर्टीज थी सॉलिड लिक्विड गैस, आप बस याद कर लीजिए, पता होना चाहिए। हमने बस ये तीन मेन चीज पढ़ा है। आपको तीन चीज को हमेशा डिस्कस करना है। क्या क्या? तो आपको पता होना चाहिए क्या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, सॉलिड में ज्यादा होता है। सारा चीज तो इसी पे था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ये तीन चीज पे ही सारा डिस्कशन होता है, ठीक है। इस तीन चीज को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्यूजन इन गैसेस। क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। डिफ्यूजन मैंने पहले ही बता दिया है ना। डिफ्यूजन इज ऑफ व्हाट? द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। आप आ गए हैं, है ना। So diffusion is in a gas is very fast. This is because the particle in gas moves quickly in all around. चूंकि गैस पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनमें डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस हाउएवर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, है ना। इसके अलावा डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। लाइट गैस डिफ्यूज फास्टर देन द हैवी। तो लाइट गैस फास्ट हैवी गैसेस की कंपैरिजन में बहुत तेजी से डिफ्यूज करती है। In laboratory, the diffusion of gas is usually demonstrated by setting up a gas jar, bromine, vapor, and a gas jar of air as in figure 28. आपने पहले ये चीज पढ़ा था। अब उससे डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप क्लियर कर लो, टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। डिफ्यूजन से पहले कुछ टॉपिक कर लो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे द स्मेल ऑफ बीइंग कुक्ड इन अ किचन reaches even from the considerable distance। अगर आपके किचन में खाना बनता है तो उसकी स्मेल एक कंसिडरेबल डिस्टेंस से भी आ जाती है ना। अगर वो बिल्कुल फ्रेश फूड है, अभी बन रहा है, ताजा बनाया ही जा रहा है, गर्म फूड है, हॉट है, तो उसकी स्मेल पूरे रूम में आ जाती है उसके, है ना। बट अगर वही स्टेल फूड है, अगर वही फुल स्टेड है, तो उसके लिए हमें उसके सामने आकर उसको स्मेल करना पड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? अगर हॉट है, अभी बनाया जा रहा है, किचन में बन रहा है, तो हॉट फूड जो है उसका स्मेल क्या होता है? तुरंत स्प्रेड कर जाता है रूम में ना। फूड का जो स्मेल होता है वो रूम में तुरंत स्प्रेड कर जाएगा। बट स्टेल फूड जो होगा, बासी खाना होगा, ठंडा खाना जो होगा, उसका स्मेल लेने के लिए हम उसके पास जाना होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन करती हूँ। So when the food is cooked, some of the substance in food releases gas having smell to the food। जब फूड को कुक किया जाता है तो कुछ सब्सटेंस, ठीक है, कुछ सब्सटेंस गैस रिलीज करते हैं जिनमें स्मेल होता है। The particle of this gas move very quickly and mix with air by diffusion। ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं और by diffusion process वो एयर में मिल जाते हैं। When the air containing these gases reaches our nose, we get smell of the food cooked in the kitchen। जब हमारे पास ये पार्टिकल्स हमारे नोज के पास आते हैं, हमें स्मेल मिल जाता है। The smell of the food being cooked reach us even from a considerable distance by the process of diffusion। है ना, दूर से ही आपके पास स्मेल आ जाता है। वो किस लिए होता है? डिफ्यूजन के कारण। एंड इफ द फिश इज बीइंग फ्राइड, जैसे आपके घर में अगर फिश बनता है, ठीक है, then a peculiar sharp smells can be detected even when quite far off। बहुत दूर से ही आपको एक स्मेल आना चालू हो जाता है। Due to the diffusion of the sizzling food,
reaches us even when we are considerable distance, but get the smell of the cold food, we have to go to close to it, है ना? समझ में आया? अगर आपको स्मेल लेना होता है हॉट फूड, एक कोल्ड फूड की बात करेंगे, या मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हॉट फूड कोल्ड फूड पे सारा डिस्कशन हो रहा है। हॉट फूड के स्मेल को आप एक कंसिडरेबल डिस्टेंस से भी फील कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, बट कोल्ड फूड को आप कोल्ड स्मेल को लेने के लिए आपको उसके पास जाना होगा। Why this happens? Why when you heat the food, the substance having some spills produces gases. These gases have kinetic energy. Okay, and due to this kinetic energy, they spread in the air and easily comes to us. But in the cold food, the particles having a smell doesn't have any kinetic energy. ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। हॉट फूड में जो स्मेल कंटेनिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, किसके कारण? स्मेल फूड के पार्टिकल्स में जिनके पास स्मेल कंटेनिंग पार्टिकल होते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, क्योंकि हीट ही नहीं दिया आपने। जब तक खाना गर्म है, स्मेल कंटेनिंग पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और उस काइनेटिक पूरे एयर में बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाएंगे, है ना? जिस पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी उनका डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उनका डिफ्यूजन बहुत स्लो होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। बातें समझ में आ रही है मेरी? यस सर। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कोल्ड काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगी। यही कारण है कि हॉट फूड को स्मेल लेने के लिए कंसिडरेबल डिस्टेंस से आप उसको फिल्टर कर लोगे, बट कोल्ड फूड को के स्मेल को लेने के लिए उसके नियर आपको क्वेश्चन का है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिखना, बिकॉज इन हॉट फूड द पार्टिकल्स कंटेनिंग स्मेल्स have a lot of kinetic energy, that's why they diffuse very fast into the air and come to us. But in the case of the cold food, the particles containing smell does not spread by the process of diffusion due to its low kinetic energy, and that's why to get a smell we have to go too close to it. Is that clear? यस सर। यस सर। अब इसी तरह एक फ्रैगनेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है। द फ्रैगनेंट ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक्स स्प्रेड ऑल अराउंड डिफ्यूजन्स ऑफ इट्स स्मोक इनटू द एयर। है ना? बर्निंग स्टिक्स जब आप जलाते हो तो इसका भी आंसर वही होगा, यहाँ पे भी वही आंसर दोगे क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना? यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे आप स्टिक में आप देखोगे यहाँ भी वही चीज होगा। द पार्टिकल्स गैस प्रोड्यूस बर्निंग इन इंस्टेंस इंक्रीज मूव very quickly, they collide rapidly in all directions. ठीक है? Particles of the gas produced by the burning of incense sticks move in all directions with particles of the present in air and mix up with air and reach to us. तो आप फिर यहाँ पर क्वेश्चन, क्यों बर्निंग इंसेंस स्टिक का स्मेल पूरे रूम में क्यों फैलता है? So when we burn the incense stick, the particles containing smell spread very quickly into the air to having a very high kinetic energy to it. Okay, that's why they diffuse very fast. That is the reason we get a smell of incense stick. Okay, burning incense stick, even it is present in any corner of our room. Smell of perfume is spread due to the diffusion of
परफ्यूम वेपर इनटू द एयर। जो परफ्यूम वेपर होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। When the bottles of the perfume is opened, then the liquid perform quickly change into the vapor, and the perfume vapor move very rapidly in all directions. ठीक है, mix with air particles and hence spread in the whole room. The leakage of the food gas in our home is detected due to the diffusion. अगर आपके यहाँ कुकिंग फूड गैस जो है, कुकिंग गैस जो है एलपीजी, उसका स्मेल आपके घर में तुरंत पता चल जाता है कि लीक हो रहा है। क्यों? डिफ्यूजन कारण। ठीक है, गैसेस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हॉट सिजलिंग फूड्स का स्मेल आना, इंसेंस स्टिक को बर्न करने पर एक कॉर्नर पे जलाने पर उसका स्प्रेड पूरे उसका स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड कर जाना, या फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम पूरे रूम में स्प्रेड कर जाना। These all are the example of the diffusion of gases. Now we will read about diffusion in liquid. We will read about some example of the diffusion of liquid. इसमें कौन कौन सा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? नहीं? The spreading of the purple color of December water on its own is due to the diffusion of the potassium permanganate into the particles. The spreading of ink, the spreading of blue color of the copper sulfate into the water on its own is due to the diffusion of the copper sulfate particles into the water. The spreading of the ink water on its own is due to the diffusion of the ink particles into the water. Okay. The gases like carbon dioxide and oxygen are essential for the survival of the aquatic plants and animals. The carbon dioxide gas, oxygen gas present in air diffuses into the water. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि लिक्विड में जो डिफ्यूजन है वो मॉडरेट है, तो आपको ऑलरेडी पता है। क्या सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है? तो यस, सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, बट लिटिल, बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब इसको होने में सालों लग जाएगा। एक सॉलिड दो तो इसको होने में सालों लग जाएगा। इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा, बचपन में एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके बॉक्स में ज्योमेट्री बॉक्स है, तभी इस चीज को नोटिस किया है, अगर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपके स्केल के ऊपर एक रबर रखा रहे और उसको लंबे टाइम तक वहीं छोड़ दो, उस ज्योमेट्री बॉक्स को लंबे टाइम के बाद खोलो, 1-2 महीने बाद, तो आप देखना ये एक्सपीरियंस करा है आपने? नहीं करा, चलो कोई बात नहीं। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं करा तो आपने ये रेड बोर्ड जो होता है या ब्लैक बोर्ड जो होता है, अगर उस पे कुछ चीज लिख दो और उसको 1 महीने के लिए छोड़ दो और उसके बाद उसको इरेज करने की कोशिश करो तो वो इजिली इरेज नहीं होगा। अगर वो तुरंत लिखा हुआ है तो इरेज करो तो वो इरेज हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? डिफ्यूजन, सॉलिड भी डिफ्यूज करते हैं बट उनका डिफ्यूजन रेट स्लो है, और अगर एक बार डिफ्यूजन हो जाता है तो थोड़ा उनको क्या अलग करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो diffusion in solid is very slow process. If we write something on the blackboard and leave it unclean for a considerable period of time, about 10 to 15 days, we will find that it becomes quite difficult to clean the blackboard. Afterward, this is due to the fact of the sum of the particles of chalk have diffused into the surface of the blackboard. Okay, if two metals block are bound together tightly, kept undisturbed for a few years, then the particles of one metals are found to have diffused into the other metal. है ना, एक मेटल के ऊपर अगर दूसरा मेटल रख दो तो उस पता चलेगा कि दोनों मेटल एक दूसरे से, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इन अनदर सेंस स्लो, बट मैनी पीपल थिंक दैट डिफ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस इनटू द सॉलिड एट ऑल। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं होता, बट ऐसा नहीं है, होता है। सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। एक सॉलिड के ऊपर दूसरे सॉलिड को रख दो तो उसमें डिफ्यूजन होगा, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, चीज ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा चेंज ऑफ स्टेट। उससे पहले हमें पढ़ना है, ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या क्या टेम्परेचर यूनिट है? डिग्री सेल्सियस और केल्विन, यही दो के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फ़ारेनहाइट भी होता है। हम अपने बॉडी को फ़ारेनहाइट पे ही क्या करते हैं, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट पे ही क्या करते हैं। तो
ये आज की कर लेते हैं, छोटी टॉपिक है, कल से नया टॉपिक कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है भाई? द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, द सेल्सियस स्केल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर इन डेली लाइफ। सेल्सियस में मेजर करते हैं नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। सो द कॉमन यूनिट ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पता है? मेल्टिंग पॉइंट उस पॉइंट को बोला जाता है जिस पर कोई शुरू कर दे, और बॉइलिंग पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जिसपे कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे। तो जनरली हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं, विच इज रिटन इन शॉर्ट डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो डिग्री, ये आप पॉइंट देख रहे हो, डिग्री को डिनोट कर रहा है। The laboratory thermometer which we use for performing science experiment are calibrated in degree Celsius. Laboratory thermometer है वो डिग्री सेल्सियस में ही दिए होते हैं। Even the clinical thermometer which we use for measure the human temperature is calibrated in degree Celsius. Thermometer है भी है आइस ऑन 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना होता है? 0। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस इज 100 डिग्री सेल्सियस। It is another scale of temperature called Kelvin scale of temperature, which is used by scientists to mainly for research work, है ना। तो डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा केल्विन स्केल भी आता है जो जनरली रिसर्च के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं लैब वगैरह में, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। याद रखना, टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन है। केल्विन सेल्सियस भी नहीं है, फ़ारेनहाइट भी नहीं है। 3 यूनिट होते हैं, या तो केल्विन होगा, या तो फ़ारेनहाइट से हम डिनोट कर सकते हैं, या डिग्री सेल्सियस से। तो केल्विन ऐसा यूनिट है which is denoted by K. Please know that the word degree or its sign written with the Kelvin scale temperature. An advantage of the Kelvin scale temperature is that all the temperatures on the scales are positive. समझ में आ रहा है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन रख लीजिए। केल्विन और डिग्री में क्या है रिलेशन है? तो केल्विन के इज इक्वल टू होता है C प्लस 273। अगर बोला जाए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, नहीं, ये रिलेशन जरूर याद रखिए। हमने अभी क्या डिस्कस किया, समझ में आया? हमने 2 चीजें डिस्कस की। टेम्परेचर को 2 स्केल पे मेजर करेंगे, या तो डिग्री सेल्सियस से मेजर करेंगे, या तो केल्विन पे मेजर करेंगे। केल्विन ऐसा यूनिट है, केल्विन ऐसा यूनिट है, केल्विन ऐसा यूनिट है, याद रख लीजिए। केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा भी होता है, अभी इस क्लास में आपको फ़ारेनहाइट डिस्कस नहीं करना, तो क्या बारे में जानना है। तो केल्विन और इसका क्या रिलेशन है? तो केल्विन का रिलेशन इक्वल टू क्या? C प्लस 273। अगर बोला जाए कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 प्लस 273 केल्विन, ठीक है। तो कितना हो गया, बोलो? 323 केल्विन, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि भाई C की वैल्यू बताओ, इस फॉर्मूले से C भी निकाल सकते हो। C की वैल्यू क्या होगी? नहीं, K माइनस 273 यही होगी ना। अगर मैं बोलूं कि भाई आप एक काम करो, आपको दिया हुआ है, सपोज करो 300 केल्विन है, 300 केल्विन, ठीक है, इनटू डिग्री सेल्सियस, इनटू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए इसको, तो क्या करोगे भाई? कौन है, कौन पेंट हो रहा है भाई? दीपांशु और यस, आप ही एक है। ये तो पेन ठोकने की आवाज आ रही है, मत करो, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं।
सर मैं नहीं कर रहा। ये समझ में आया आपको? अब इसको कैसे चेंज करोगे? तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? C इज इक्वल टू 300 माइनस 273। तो 270। वैल्यू क्या आ गई बताओ? 27 यस सर। 27। यस सर। डिग्री सेल्सियस। तो इसके से एग्जाम में आपके दो या तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करिए। और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो बॉइलिंग पॉइंट तो आप जान गए और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और सॉरी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अगर मैं बात करूं सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बोले वाटर की या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोले, ठीक है, तो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल में। और केल्विन पे क्या होता है? 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 15 हाँ, डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, बट केल्विन में कितना होता है? 373 केल्विन। याद रख लेना। ये तो डिग्री सेल्सियस याद रहेगा, ये भूल जाओगे। एग्जाम में आ गया तो इसका जवाब दे देना फटाफट। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि वी हैव लर्न दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस। द केल्विन स्केल इज 273। केल्विन स्केल पे 273 होता है। दैट मींस दैट द टेंपरेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। इसका मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है? 373 है। 373 केल्विन के बराबर होता है। बस इतनी चीजें याद रखना, टॉपिक खत्म हो गया।